مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے باہمت پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم الرحمان باہمت پاکستان سے۔ حکیم زاہد جاوید شفقت جو کہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے 393 جیم بے خانپور میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں گزشتہ 33 سالوں سے۔ ماہر طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اچھے شاعر بھی ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ حکمت کے جو شعبے سے جو آپ وابستہ ہوئے ہیں، اس میں آپ کیسے داخل ہوئے، کیسے آپ کا آنا ہوا؟ اس میں یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی اس چیز کا شوق تھا کہ لوگوں کا جو صحت کا امور ہے اس پر روشنی بھی ڈالے جائے اور ان کو عملی جامہ پہنا کر اس قوم کی خدمت کی جائے، کیونکہ اکثر دیہاتوں کے جو لوگ ہیں نا وہ غریب ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے میں نے یہ عزم کیا اور اب الحمدللہ میں اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ سردیوں کا موسم اب آ رہا ہے، تو آپ کو جیسے اب بیماریاں شروع ہوں گی، نزلہ، زکام، کھانسی، بچوں کو بخار، بڑوں کو بھی، تو اس سلسلے میں لوگوں کو کیا گھر میں ایسی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس کا جو ہے وہ تدارک کر سکیں؟ تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں زیادہ تر اس مرض کا یہ شکار ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ جو ہماری دیہاتی مائیں ہیں نا وہ کیئر نہیں کر پاتی کہ بچہ ہے اس کو ذرا سی سردی لگ گئی، وہ خیال نہیں کرتی، ٹھنڈا فیڈ کروا دیا، دودھ جو ہے ٹھنڈا فیڈ کروا دیا، تو اس سلسلے میں جو یہ ٹھنڈا فیڈ ہے اس سے اس کی چھاتی پہ جو یہ بلغم ریشہ ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ابتدائی جو ہے بچوں کو دار چینی جو ہے اس کو پیس کر دودھ میں ملا کر گرم کر کے شہد ملا کر بچوں کو پلائی جائے، تو اس سے بچہ جو ہے ساری سردیاں کا جو موسم ہے اس میں اس سے محفوظ رہے گا۔ اور بڑوں کے لیے بھی یہی دار چینی جو ہے نزلہ، زکام، فلو، اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، شہد کا استعمال اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم بازاری جو ہے جو جشاندہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ تو ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا کلونجی کا استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی بہت افیکٹ ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ ایلوپیتھک جو ہے وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایمرجنسی کے اندر جو ہے ایک بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن ایک باقاعدہ جو ہم علاج کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایلوپیتھک اس حساب سے اور جو آپ کا جو حکمت حکیم ہے، آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں دونوں میں؟ تو اس سلسلے میں وضاحت اس چیز کی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایلوپیتھک علاج ہے بیسیکلی یہ ٹیمپریری ہے، چونکہ جو اصل علاج ہے جو کسی مرض کو جڑ سے کھاڑتا ہے وہ ہربل ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ اس سے جو بھی مرض ہوتی ہے وہ بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے دیکھیں مثال کے طور پر یہ نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، تو اس سے عارضی طور پر افاقہ ہوتا ہے، پھر اس مرض جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہربل علاج کیا جائے تو الحمدللہ یہ مرض جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف اور صرف لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کا اگر کوئی اپریٹلی ٹائم ہے، اپریٹلی بھی کوئی کیس ہے، مثال کے طور پر کوئی کیس ڈلیوری ہے یا کوئی یہ اپینڈکس ہے یا کوئی اس قسم کا ہے، اس میں آپ ایلوپیتھی کو ترجیح دیں، وگرنہ آپ ہربل ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر آقا حضور نے شہد کو بہت ساری بیماریوں کے لیے مفید پایا اور اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ اسہال کی شکایت ہے، تو آقا نے فرمایا شہد استعمال کرو۔ دوسرے دن وہ صحابی پھر آیا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ اسہال جو ہیں وہ قبر نہیں ہوئے، آقا نے پھر فرمایا کہ شہد کو استعمال کرو۔ تو تیسرے دن پھر آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افاقہ نہیں، آقا نے پھر فرمایا کہ شہد استعمال کرو۔ بس جو ہی تیسرے دن اس نے شہد کو استعمال کیا تو اس کے جو اسہال بھی رک گئے۔ ہاں، پھر اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے 2 دن میں نے بھی شہد استعمال کیا، اس وقت کیوں نہیں میرے اسہال رکے؟ تو آقا نے فرمایا کہ شہد میں شفا اس قسم کی ہے کہ پہلے آپ کے اندر جو وائرس تھا، جو بیماری کے جراثیم تھے، اس کو غسل دیا، کیونکہ شہد غسال بھی ہے۔
बाद में ये शहद जो है वो उस बीमारी जो थी वसाल के बाद हावी हो गई और शहद ने अफाका किया, आपकी बीमारी ख़त्म हो गई। तो इस तरह ये जो हर्बल ट्रीटमेंट है, मिसाल के तौर पर ये सर्दियां हैं, इसमें आप मुंह में मुलट्ठी चबाते रहते हैं तो आपको पूरा जो है सर्दियां हैं वो आपको नज़ला ज़ुकाम, इससे आप गले की सोजिश, फ्लू, इससे बचे रहेंगे। बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये मैं एक नाज़रीन साहब से ये बात करना चाहूँगा कि तकरीबन 1-2 साल पुरानी बात है कि मेरी खुद अपनी बेटी की एक दफ़ा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे मौजूद था, पंजाब में आया हुआ था, तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों के पास आगे पीछे भागा गया लेके, तो सब ने एंटीबायोटिक्स और जो है मेडिसिन वो देते रहे, खांसी की शरबत देते रहे। तो डॉक्टर साहब का मुझे बताया, ज़ाहिर साहब का मुझे बताया किसी ने, तो मैं इनसे फिर मिला और उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि कोई गले का मसला नहीं है, ये मैदे का मसला है। तो बल मुझे तो उससे ज़्यादा खास समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ये थोड़ा समझ में आया कि इन्होंने जो तशख़ीस की है, हो सकता है कि इनके वो पर उन्होंने दवाई दी तो वो उससे माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो तकरीबन 1.5 दिन के अंदर जो है वो उसकी खांसी जो है वो रुक गई थी। तो डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर हम लोगों के पास डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि सही तरह उसकी तशख़ीस नहीं करते हैं मर्ज़ की, उसको सही तरह जो है उसको सही तरह बयान नहीं बताते लोगों को। तो डॉक्टर साहब, ये इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मरीज़ को अगर सही तरह बताया जाए, गाइड किया जाए कि भाई आपको ये जो चीज़ है इसकी वजह से पेश आ रही है? लोग समझते हैं कि ये जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बेसिकली लोग तो अपना मसीहा समझ कर जाते हैं ना डॉक्टर के पास, लेकिन आजकल का दौर जो है इसमें डॉक्टर मरीज़ को बेसिकली टाइम ही नहीं देते, उसकी तसल्ली और तशफ़ी जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर के पास जो ही मरीज़ जाता है तो वो उसको 1-2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में फ़ारग करता है। जबकि जो हमारा हिकमत का असूल है, इसमें हम तो मरीज़ को इस अंदाज से देखते हैं कि उसकी तह तक पहुंचना है कि ये मर्ज़ हुआ है और कब से हुआ है और क्यों हुआ है और अब इसका तदारक क्या करना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे आपने ये बताया कि मेरी बच्ची को तकलीफ़ गले की थी, तो डॉक्टरों ने उसको एंटीबायोटिक दे दे के उसका मेरी समझ में यही हुआ कि उल्टा नुकसान हुआ। क्या कि एंटीबायोटिक ऐसी एक चीज़ है कि उसके बार बार इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की जो कुव्वत मदाफ़त है, इम्यूनिटी है, वो कम होती चली जाती है। तो हमने देखा कि ये इतना एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी उसका गला कवर नहीं हो रहा, तो उसकी ख़ास वजह है। क्यों नहीं हो रहा? असल में उस बच्ची का मैदा ख़राब था, मैदे में से जो ऊपर को तज़ाबियत उठती थी, तज़ाबियत एक ऐसी चीज़ है वो गले के अंदर जाकर ब्रीक ब्रीक छाला नमा बनाती है, गले में सोजिश पैदा करती है। तज़ाबियत, मैदे की जो तज़ाबियत होती है, तो उसकी वजह से उसका गला ख़राब था। तो मैंने उसका यही किया कि उसके मैदे की इस्लाह की, उसके मैदे की जो तज़ाबियत थी ख़त्म होगी, गला ऑटोमेटिक सही होगा और बच्ची बिल्कुल नौबार हो गई। तो ये है मसला असल में। तो इस सिलसिले में यही है कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए और देखना चाहिए। एक तो ये एलोपैथिक की निस्बत सस्ता इलाज है, बहुत ही सस्ता है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, जबकि एलोपैथिक के हज़ारों साइड इफ़ेक्ट हैं। वो कभी गुर्दों के एक साइड उसकी कवर करते हैं। मिसाल के तौर पर मरीज़ मैदे का है, अगर उसको मैदे को दुरुस्त करते हैं तो उसके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, अगर उसका दूसरे गुर्दों को दुरुस्त करते हैं तो उसका जो लिवर है वो शिकार हो जाता है। तो इसलिए ये ऐसा ट्रीटमेंट है हर्बल कि इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं जी। तो लोगों को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। हाँ, आप ज़रा सोचें कि आज से कोई 100 साल पहले, बल्कि 1400 साल पहले और इससे भी कबल क्या इलाज था? यही हर्बल इलाज था। बिल्कुल सही बात है, उस वक्त यही था। ये तो एक सदी हुई है एलोपैथिक को आए हुए, इससे पहले तो यही हर्बल था। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया और अबू अली सीना जो थे वो इसी बकरात हकीम था, वो किससे इलाज करते थे? अफलातून था, वो यही इलाज करते थे और यही साइंटिफिक इलाज है। और आज भी आप इसको आजमा कर देखें बार बार। तो ये जो खाते हैं लोग इम्प्राजोल वगैरह, मैदे की काफ़ी मेडिसिन खाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 2 दिन पुदीना और ज़ीरा और सौंफ इसको चबा कर या इसका कावा पी कर देख लें। अगर मरीज़ ना सही हो तो मुझे फ़ोन पे कॉल करें। ऐसा कौन सा मसला है कि मरीज़ दुरुस्त ना हो? अल्हम्दुलिल्लाह होता है।
क्यों क्योंकि बेसिकली हर बीमारी की जो जड़ है वो मैदा ही है, कब्ज़ है। जिस वक्त कब्ज़ दुरुस्त हो जाएगी, मैदा दुरुस्त हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसके गुर्दे, जिगर, ये जो दूसरे जिस्म के आर्गन हैं वो खुद ब खुद ही दुरुस्त हो जाएंगे। कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? कोई ऐसा कोई ख़ास आपने किसी को अपनी ट्रीटमेंट की हो? इस मामले में ये है कि जिसको पता चलता है कि क्योंकि शफा मिन जानिब अल्लाह, तो लोगों को ये चाहिए कि हमें सस्ता भी इलाज मिले, और दूसरे नंबर पर लोग ये भी चाहते हैं कि जल्दी भी मिले। तीसरे नंबर पर लोग फिर ये नहीं देखते कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो चंद रोज़ कबल मेरे पास जंग से मरीज़ आए, और कल ही ये जो कमालिया है वहाँ से मेरे पास, कमालिया के करीब है लुंडू, वहाँ से मेरे पास मरीज़ आए। अक्सर बरियाम माला से आते हैं, कभी गोजरा से भी आ जाते हैं। तो असल मरीज़ को जिस वक्त पता चलता है कि फ़लाँ इलाके में ये मसला है, मेरा मसला हल हो जाएगा, तो मरीज़ पहुंच जाता है। और इस सिलसिले में हमारा काम जो है ऑनलाइन भी चल रहा है, तो उसमें भी हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं, और ये नेट पर हम अपना काम कर रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं, और लोग हमारे साथ ताआवन करते हैं। अपना मसला जो है वो फ़ोन से बयान करते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज देते हैं, तो हम उसकी जो सिम्पटम होते हैं उसके मुताबिक उसको दवाई भेज देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम कर देता है और मरीज़ कवर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात हकीम ज़ाहिद साहब ने बताई है आपको कि आप इनसे जो है वो ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर दे दूँगा, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं आप इनसे अपना सवाल करें, अपनी बीमारी का उनको बताएं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, और मेरा ख़ुद भी बड़ा अच्छा है, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, और लोग भी मुख्तलिफ़ जगहों से लोग इनके पास आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इनसे रब्ता करें, अपना मसला बताएं, इंशाअल्लाह ताला वो आपको अच्छा गाइड करेंगे और इस सिलसिले में आपको सही मशवरा देंगे। दूसरी मैं आपको बात बताऊँ हकीम साहब के बारे में कि ये बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, शायरी करते हैं, ख़ासकर इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने लिखे हैं, नज़में लिखी हैं, तो इस सिलसिले में इनसे हम बातचीत करते हैं। तो हकीम साहब ये ज़रा बताएं कि ये बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए आप जो नज़में लिखते हैं, ये कैसे शौक़ पैदा हुआ, और ये बड़ा एक डिफरेंट सा एक वो सब्जेक्ट है, क्योंकि कैसे आपने ये? नहीं साहब, असल में हर आदमी का एक अपना अपना मिजाज होता है। तो बचपन से ही मुझे ये खिदमत खलक यानी इंसानियत की फ़लाह की एक सोच है कि मेरे दिल में अल्लाह पाक ने इस कौम के लिए दर्द रखा है। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये जल्दी भटक भी जाते हैं और जल्दी ही ये अपने मिशन पे कामयाब भी हो जाते हैं। तो मैंने इनकी इस्लाह के लिए ये कह लें कि कॉलेज लाइफ से ही अपना इनके मतलब सोच रखी और लिखा भी। बहुत अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये कहाँ आपकी नज़में जो हैं आविज़ा हैं, कहाँ पर? एक तो ये हमारे करीब हैं, गवर्नमेंट 394 जिम्बे जाजा स्कूल है, उसमें मैंने सबसे पहली जो पोइम आज से तकरीबन 5-7 साल पहले लिखी। यूँ ही स्कूल में आवेज़ा हुई तो सब टीचर जो थे बहुत खुश हुए कि भाई ये तो हकीम साहब ने कमाल कर दिया, क्योंकि ये एक इस्लाही चीज़ थी। वो एक अनवान था मच्छर पे एक, जो कि मैंने वो लिखी इस्लाही थी और बहुत ही उसकी मुझे। सर अभी मच्छर पे आपसे सुनते हैं अभी, ये इसके अलावा और किन स्कूलों में कहाँ? हाँ, इसके अलावा मैंने एक अजीज़ा है फैसलाबाद में, उसने बच्चों का स्कूल बना रखा है, वहाँ भेजी। और इसके अलावा ये हमारे करीब जितने भी इर्द गिर्द स्कूल हैं उनको भेजी। कुछ अहबाब ये हैं कि वो मेरे मतब पे आते हैं और वो तस्वीर मच्छर का जो मैंने अपने मतब में भी चार्ट लगा रखा है उसको देखकर उसकी वो फ़ोटो लेते हैं और वो खुश होते हैं और बल्कि जाकर दूसरे लोगों को भी बताते हैं। चले नाज़रीन, अभी आप भी काफ़ी वेट कर रहे होंगे कब ये शायरी सुनाते हैं। तो सर ये मच्छर के ऊपर ज़रा जो है ना, क्योंकि आजकल को पता है सीज़न चल रहा है डेंगू वाला ना, तो ये इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रा मच्छर वाले में सबसे पहले आप सुनाए ना सर। पहली नज़म लिखी थी वो मच्छर के अनवान से थी। बला बन के आते हैं हर रोज़ मच्छर, बला बन के आते हैं हर रोज़ मच्छर, यूं ही रात हमको सताते हैं मच्छर। दिन का सुकून बर्बाद करती हैं मक्खियाँ, दिन का सुकून बर्बाद करती हैं मक्खियाँ, रातों की नींदें उड़ाते हैं मच्छर, रातों की नींदें उड़ाते हैं मच्छर। कभी कानों में करते हैं सरगोशियाँ,
कभी कानों में करते हैं सरगोशियाँ, कभी लंबे लंबे राग सुनाते हैं मच्छर, कभी लंबे लंबे राग सुनाते हैं मच्छर। कभी पाँव में चुभन चेहरों पे रगड़, पाँव में चुभन चेहरों पे रगड़, कभी हाथों से थपेड़ियाँ लगाते हैं मच्छर, कभी हाथों से थपेड़ियाँ लगाते हैं मच्छर। जिस्मों में ईंठन सरों में दर्द, जिस्मों में ईंठन सरों में दर्द, कभी प्लाज्मोडियम का टीका लगाते हैं मच्छर, बला बन के आते हैं हर रोज मच्छर। और ये मेरी तरफ से पैगाम भी है। और ये ऐसा जालिम है मच्छर कि ये किसी की बात ही नहीं मानता। तो लिखा है कि धुएं का असर ना स्प्रे का डर, धुएं का असर ना स्प्रे का डर, मस्ती में अपनी दंदनाते हैं मच्छर, यूं ही रात हमको सताते हैं मच्छर। हर गली कूचा की नाली गर मिशन हो सफाई, हर गली कूचा की नाली गर मिशन हो सफाई, जाहद छोड़ महल्ला जाते हैं मच्छर, यूं ही रात हमको सताते हैं मच्छर, बला बन के आते हैं हर रोज मच्छर। वाह जी वाह। नाज़रीन, आपको पसंद आई होगी है। और आजकल वैसे भी डेंगू का सीज़न चल रहा है तो एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जाहिद साहब, कोई इसके अलावा कोई नज़म सुनाए हमें आप। मिस मिस मुझे पढ़ाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ, सारे क्वेश्चन याद कराओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। आधे क्वेश्चन हैं डिफ़िकल्ट, मैं हूँ स्टूडेंट बड़ा परफेक्ट। आधे क्वेश्चन हैं डिफ़िकल्ट, मैं हूँ स्टूडेंट बड़ा परफेक्ट। डांट मम्मा से मुझे बचाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। डांट मम्मा से मुझे बचाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। मेरी मम्मा है गुस्से वाली, मोटी सुर्खी आंखों वाली। मेरी मम्मा है गुस्से वाली, मोटी सुर्खी आंखों वाली। पटाई से उसकी मुझे बचाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। क्लास में देखो मिस है डांटे, क्लास में देखो मिस है डांटे, घर में देखो मम्मा है पटाखे। क्लास में देखो मिस है डांटे, घर में देखो मम्मा है पटाखे। मेरी इनसे जान छड़ाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। होमवर्क मिस दे ज़्यादा, होमवर्क मिस दे ज़्यादा, किताबी बस्ता सबसे ज़्यादा। होमवर्क मिस दे ज़्यादा, किताबी बस्ता सबसे ज़्यादा। खुदा का कुछ तो खौफ खाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। अब्सेंट कभी हुआ ना करो, अब्सेंट कभी हुआ ना करो, क्लास में हर वक्त रहा करो। पढ़ाने से कभी जी न चराओ, पढ़ाने से कभी जी न चराओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। फूल कलियां और गुंचे नराले, फूल कलियां, ये छोटे बच्चे हैं ना, ये फूल होते हैं या कलियां होती हैं। ये फूल कलियां और गुंचे नराले, जाहद बच्चे भोले भाले। प्यार मोहब्बत इनको सिखाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। जाहद बच्चे भोले भाले, प्यार मोहब्बत इनको सिखाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ, मिस मिस मुझे पढ़ाओ। सारे क्वेश्चन याद कराओ। जी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त पोएम बच्चों के लिए ये। तो आपने हकीम जाहिद साहब का इंटरव्यू देखा, आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपसे एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी दवाई के बारे में आप इनसे मशवरा कर सकते हैं, इनसे आप ले भी सकते हैं। इनका ऑनलाइन पूरा सेटअप है, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा, तो आप इनसे रब्ता कर जाइएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाहिम्मत पाकिस्तान